Ichimoku trading system. What is the Ichimoku trading system? The Ichimoku indicator was developed by Goichi Hasoda. 1898 to 1982 is his lifespan. A Japanese journalist who wanted to create a great indicator that could help him in better investment decisions. Hosoda tested his research for over 20 years before making it public in the late 1960s. 1960s से ये चल रहा है और मतलब यूरोप यूएस में ये सिस्टम 2000 के स्टार्टिंग से 2003-4 से ये सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया. This is a very powerful system, and if you can properly understand it, it takes time to understand, but if you can properly understand it, you can trade many good trades, take many good trades. The full name of technique of the technique is Ichimoku Kinko Hayo. इस टेक्निक का नाम है, इचिमोकू का नाम फुल नाम है, ट्रेडिंग सिस्टम का जो ट्रेडिंग सिस्टम है इचिमोकू, उसका नाम है इचिमोकू किनको हायो, which means इचिमोकू means one glance, kinko means equilibrium, and hayo means chart. So in one sentence, the three union of the three word means one glance equilibrium chart. मतलब इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? One glance, at one glance you will be able to see the equilibrium chart. Equilibrium of the prices will determine whether it is a bearish or bullish market, right? So moving forward, there are 6 components of Ichimoku trading system. First is the Tenkan-sen or the conversion line. Second is the Kijun-sen or the baseline. Then there is a Senkou span A, leading span A, and Senkou span B, leading span B. Then there is a Chikou span or lagging span. We will not use the Chikou span much. We will not read the Chikou span much because it is a very poor indicator. It is just for academic purpose that we will learn what is Chikou span. But we will be seeing Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span B, and the Kumo cloud. The cloud is the most important thing in Ichimoku. The Ichimoku cloud is called the Kumo, right? So these are the 6 components or trading system of the Ichimoku. The Tenkan-sen or the conversion line, Kijun-sen or the baseline, Senkou span A, leading span A, Senkou span B, or you can say it as leading span B. Chikou span is the lagging span, less important, we will not study that much. And then is the Kumo cloud. Now Tenkan span conversion line. How to calculate the Tenkan-sen? Tenkan-sen calculated by last 9 periods high. The high of the last 9 bars. मतलब डेली चार्ट बनाएंगे तो लास्ट 9 जो कैंडलस्टिक्स होंगे उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा प्लस द लास्ट 9 बार्स का लो. अगर हम एक जगह खड़े हैं उसके पहले के लास्ट 9 बार्स होंगे उसका लो. सो ये दोनों लास्ट 9 पीरियड हाई प्लस लास्ट 9 पीरियड लो उसका एवरेज लेंगे. दैट इज अ Tenkan-sen. A bullish signal happens when prices move above Tenkan-sen or conversion line, and a bearish signal happens when the prices move below the Tenkan-sen or conversion line. Right? Clear to everybody? Last 9 period high plus last 9 period low का average is the Tenkan-sen. Tenkan-sen के जब price will cross the Tenkan-sen line above the Tenkan-sen line, then it is a bullish signal. When the prices go below the Tenkan-sen line, it is a bearish signal. Clear till now? Okay. Then is the next component. Then is the next component of the Ichimoku. That is the Kijun-sen or the baseline. The Kijun-sen is calculated by last 26 period high. Last 26 candlesticks लेंगे उसका जो high होगा plus the last 26 period low, lowest point, उसका जो वो दोनों values होंगी उसका average जो होगा this is the Kijun-sen. Tenkan-sen is last 9 period high plus 9 period low by 2, and Kijun-sen is last 26 period high plus last 26 period low ka average by 2, right? A bullish signal happens when the price is same, crosses above the Kijun-sen, and a bearish signal happens when the prices fall below the Kijun-sen. Clear? This is the Tenkan-sen and the Kijun-sen.
The first two components of the Ichimoku system. First is Tenkan-sen conversion line. Second is Kijun-sen baseline. How do is calculated? How is it calculated? We have studied today, right now. So next is the Senku span A and Senku span B. The Senku span A and the Senku span B line will form the Ichimoku cloud. हम diagram देखेंगे उसका Ichimoku का. So Senku span A, Senku span B will form the Ichimoku cloud. Now what is Senku span A? Conversion line plus baseline divided by 2. मतलब Tenkan-sen conversion line है और Kijun line baseline है. Tenkan-sen plus Kijun-sen का average is the Senku span A. Tenkan span or Kijun span ka average is the Senku span A line, right? Clear? Kijun Tenkan span is the conversion line. Kijun span is the baseline. So conversion line plus baseline divided by 2 is the Senku span A. Senku span B कैसे calculate करेंगे? Last 52 period का high, highest candle of the last 52, the highest point है last 52 candles में plus the lowest last 52 period का low by 2 उसका average. A bullish trend takes place when Senku span A crosses over the Senku span B. जब Senku span A will cross over Senku span B, like just like in moving average, the fast moving average crosses the slow moving average. So when the Senku span A crosses above the Senku span B, then it's a bull signal. When the Senku span B, Senku span A cross kiya above Senku span B, it's a bullish signal. But when the Senku span B crosses the Senku span A towards the downside, it's a bearish signal. Clear when is the bullish signal, when is the bearish signal in Senku span A and B? Everybody is clear? Please type yes. So how to make the average of conversion line and baseline means it will be a number. How it will be? ये जो Kijun sen का वैल्यू आएगा, Kijun sen का जो वैल्यू, Tenkan sen का जो वैल्यू, that is conversion line का वैल्यू रहेगा वो. Yes, वैल्यू रहेगा. Tenkan sen का जो वैल्यू है प्लस Kijun sen का जो वैल्यू है, yeah, got उसका फॉर्मूला दिया हुआ उसका एवरेज. Basically, step 3 can be done only after doing step 1 and step 2. Otherwise, it cannot be done. Yes. Senku span A and B will be done after Kijun and Tenkan sen. We are just learning this for academic purpose, but when we will go to the charts, already the Ichimoku will be prepared for us. So we just have to study the Ichimoku. We don't have to calculate these lines and make the diagram. Diagram will be automatically made by default. Okay. So Senku span A भी समझ में आ गया सबको? Then is the Chiku span. Chiku span is the current closing price shifted 26 periods backward. मतलब अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो 26 periods पहले का जो लाइन होगा, जो पॉइंट जो प्राइस होगा, वो लाइन अभी के पीरियड में लिया जाएगा as Chiku span. A bullish signal happens when the prices break above Chiku span, and a bearish signal happens when the prices break below the Chiku span. मतलब हम लोग अभी इस पॉइंट पे खड़े हैं 11 मार्च को. सो 11 मार्च की 26 दिन के पहले जो लाइन जो पॉइंट है वो अभी लेके हम देखेंगे कि अगर अभी का जो पॉइंट है वो 26 दिन पहले का जो प्राइस है उसके ऊपर है कि नीचे है. अगर 26 दिन के प्राइस पहले के प्राइस के ऊपर है देन इट्स अ बुलिश सिग्नल. अगर 26 दिन प्राइस के नीचे है देन इट्स अ बेरिश सिग्नल. 26 दिन पीछे जाएंगे हम फॉर द Chiku span line. Clear? Chiku span is clear to everybody? Any questions? Is this a very trustworthy parameter, Chiku span? No. This is just for ये ज्यादा काम नहीं आता है. Right. This is a weak indicator. इसको मैं 3 out of 10 दूंगा. Yeah. It's not that great an indicator. It's just for a मतलब उस सिस्टम में ये बनाया गया है तो हमें स्टडी करना है. लेकिन बेसिकली हम लोग क्लाउड देखेंगे,
सेनकू स्पैन ए देखेंगे, बी देखेंगे, और चिकू और किजुन देखेंगे, सॉरी किजुन और टेंकेन देखेंगे, राइट? So next is the Kumo cloud. Kumo or Ichimoku cloud. The Kumo cloud is the space between the leading span A and the leading span B. जो चिकू स्पैन A था, तो सेनकू स्पैन A और सेनकू स्पैन B था, उसके बीच में जो स्पेस होगा, just like a Bollinger Band, is a cloud. वो cloud बनता है between the चिकू स्पैन A and चिकू स्पैन B. If the prices are above the cloud, trend is bullish. If the prices are below the cloud, trend is bearish. And if the prices are in the cloud के अंदर price है, is a sideways trend, and you should not trade that trend. Sideways trend को trade नहीं करना है. Clear? All the 6 parameters are clear to everybody? Please type yes. कहीं पे कोई डाउट या वापस समझना हो? Okay, now let's see the chart. How to plot Ichimoku and read the Ichimoku trading system. Let's take a very powerful stock. Let's take Hindalco. Okay. We've taken the Hindalco chart today. Now we go to the indicators and we select Ichimoku. Ichimoku cloud. Don't get afraid. Don't get nervous seeing this chart. We will understand how the chart is formed. Don't worry. My laptop is showing two readings in Ichimoku. Yeah, pardon? My laptop is showing, my screen showing two readings of Ichimoku. Ichimoku 926, 52, 577. Yes, that is the Ichimoku cloud. Yours is showing just one. So how come it is not? This is the Ichimoku trading system. ये दिखा रहा होगा आपको? Ichimoku दो बार सेलेक्ट कर लिया होगा. Maybe. हाँ, तो एक को डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए. Like delete this way. You can delete it this way. Everybody got this? Ichimoku? Please type yes. सबने ड्रॉ कर लिया Ichimoku? Everybody else? Ichimoku has been drawn by everybody? Okay, so let's start now.
You can see these lines with the charts, expand it once. Okay. So this is the Ichimoku trading system. Now see, the first Ichimoku parameter is conversion line. This is Kijun. Conversion line is the Tenkan-sen. Sorry, Tenkan-sen. So this is the conversion line of Tenkan-sen. We have taken it as blue. Let's take it as blue. Okay. So we'll first read the Tenkan-sen. You can see whenever the prices break above the Tenkan-sen, it's a bullish signal. And when the prices break below the Tenkan-sen, it becomes bearish. And the see यहाँ पे आप इस Tenkan-sen को break किया ऊपर में, it's bullish. One second. How did you reach this blue thing? How did you do this? Blue, dark blue. Yeah, how did you do this? Yeah, you double click on the Ichimoku. Oh, Ichimoku, double click, okay. Now conversion Yeah, line okay. में देखिए, Right. यहाँ पे इसको dark कर Right. दें. ठीक है? So first we'll understand the Kijun line. Okay, we are understanding the Tenkan-sen line first. Tenkan-sen line is the 9-day period high plus 9-day period low divided by 2, right? So this is the Tenkan-sen line. Tenkan-sen line के नीचे जाएगा, then we'll short. Tenkan-sen line के ऊपर जाएगा, then we'll sell. देखिए, Hindalco is still above Tenkan-sen line, so we'll maintain our buy position. Clear to everybody, Tenkan-sen? Very simple. ये कोई स्टॉप लॉस का रेजिस्टेंस नहीं बताते, क्योंकि सपोज आज के दिन जहाँ हम खड़े जो बार अभी बना है आज क्लोज के समय हाँ। 589, हम वहां खरीदिए और अब ये नीचे जाने लग गया, तो हाँ। जस्ट कि जब वो लाइन को तोड़ देगा हमको तो वहां बेच देना चाहिए. Yes. Stop loss, इसमें stop loss बताएगा when the रेजिस्टेंस बताएगा. नहीं, इसमें आपको Tenkan-sen है यहाँ पे, समझिए आपने यहाँ पे पोजीशन लिया या यहाँ पे पोजीशन लिया, इस बार के बनेगा यहाँ पोजीशन लिया, यहाँ पे पोजीशन लिया इस बार के बाद जब ये लाइन के ऊपर गया, ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट इज स्टॉप लॉस. मतलब लाइन कहाँ पे है 525, जहाँ पे हमने पोजीशन लिया है. सो ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ, देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता रहा है. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अराउंड 560 ये इस विक के नीचे, 570 के पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा. 570 अगर नहीं तोड़ेगा देन हिंडाल्को इज स्टिल बुलिश. नहीं 570 कैसे आया सर? ये लाइन है ना, ब्लू लाइन, हाँ ये बढ़ती जा रही है ना, हाँ as the हाँ. price is moving, line is also moving ना. तो सर वो ऊपर वाला नहीं होना चाहिए 576 यहाँ पे? Yes, अभी तक 570 10 मार्च को था, अब अगर 578 76 तोड़ देगा then it is the you have to place stop loss at 576. ओके. उसके तोड़ने से And we should- वापस से Tenkan-sen को तोड़ देगा then it will go downwards again. एंड वी शुड बाय एट दिस पॉइंट, मैंने जो मार्च में जो एक बड़ा सा कैंडल चार्ट बने, क्योंकि आज के दिन अभी हम बाय कर लिए तो मैं फंस सकता हूँ. Yes. है You ना? have to buy when the candle crosses the Tenkan-sen line. क्योंकि इफ आई बाय आफ्टर दिस मैंने No, टुडे no. तो This आई is a, कैन. नहीं वो तो खाली एक वो हो गया कि मतलब आपने एस्टिमेशन में इंट्यूशन में ले लिया ट्रेड. हाँ मैंने हाँ. ब्रेकआउट हो गया, उसके बहुत टाइम बाद मैंने लिया वो हाँ. सौदा. इसमें बेसिकली ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे से बताते हैं. Tenkan-sen Kijun-sen है ना, और आपको इचिमोकू में ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी मिलेगा, ब्रेकडाउन्स भी बहुत जल्दी मिलेगा, जो बाकी इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलता. ओके. राइट. सो दिस इज द Kijun-sen लाइन. सो वी विल वापस इसको कम कर देते हैं. Then is the what line? Base line or the Kijun line. First we saw the Tenkan-sen line. Now we'll see the Kijun line. इसको Kijun-sen line को रेड कर देते हैं और डार्क हो जाएगा. अब देखिए Kijun-sen के ऊपर वो सेम लॉजिक है, Kijun-sen के नीचे है, यहाँ पे देखिए Kijun-sen को तोड़ दिया,
The Kijun-sen will be a slow indicator. मतलब यहाँ डाउन ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट टैंकेन-सेन को ब्रेक किया, देन किजुन को ब्रेक किया, तो इतना बड़ा डाउन ट्रेंड मिल गया। फिर किजुन-सेन के ऊपर प्राइसेस गए, किजुन-सेन के ऊपर चल रहे हैं, किजुन के ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत नीचे आया, दैट डजंट मैटर बिकॉज इट अगेन वेंट अप। सो किजुन के ऊपर ही चल रहा है लाइन प्राइस। सो किजुन टैंकेन दोनों के ऊपर प्राइस चल रहा है, इट्स वेरी बुलिश। Kijun is the 26-day period line. Tenken is the 9-day period line. 9-day period line, and Kijun is the 26 period line. Baseline. Conversion line is Tenken-sen. Baseline is Kijun-sen. Tenken and Kijun is clear to everybody? सर कुछ डाउट है एक, हाँ, जो बोलिए। मतलब ये जो बेस लाइन है, फिर वो देख के अगर आप इसकी ट्रेड पे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है ना अपने को, अगर क्योंकि ये यहाँ पे जब ये ब्लू ये रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तो बहुत ज्यादा अप मूव दिखता है, हम रेड लाइन को Yes, है yes, ना? yes. Yes. Kijun-sen is more powerful than Tenken-sen. अगर Kijun-sen के ऊपर होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मिलेगा। जो यहाँ पे एक हुआ भी है सर दिसंबर में, अगर आप देख रहे हो तो हाँ हाँ 16 दिसंबर के आसपास वो ब्लू लाइन को क्रॉस ही कर दिया है। यस 16 दिसंबर को कोई एग्जैक्टली। वॉलेटाइल ट्रेड लेके दिखाइए ना, कोई काउंटर था जिसमें ये एक ही ट्रेंड है ना, बुलिश ट्रेंड, इसमें हाँ हाँ कुछ जिसमें वॉलेटाइल कोई ट्रेंड दिखाइए ना प्लीज, नहीं ये तो इसमें साइडवेज भी पता चले कुछ। राइट राइट। सो लेट्स टेक टाटा स्टील। ये जब क्लाउड के अंदर में, दिस इज द क्लाउड, दिस इज द टेंकेन, दिस इज द span A, leading span A, and this is the leading span B. ये जो लाइन है ये लीडिंग स्पैन बी है, ये लीडिंग स्पैन ए। जब भी लीडिंग स्पैन, ये क्लाउड के, ये क्लाउड बनाता है, ये क्लाउड है, दिस इज द क्लाउड। क्लाउड के अंदर जब भी प्राइस रहेगा, वी विल नॉट टेक अ ट्रेड। देखिए यहाँ पे क्लाउड के अंदर प्राइस है, वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड। ओनली व्हेन इट इज अबव द क्लाउड वी विल टेक अ बाय ट्रेड, and if it is below the cloud we'll take a sell trade. That is Within the this cloud, sorry, within this cloud, we are seeing two colors, light green and light red or maybe light pink. yes, That is showing bullish and bearish trend. yes, this is the bearish trend। see यहाँ पे जो यहाँ पे जो लाइन है क्रॉसओवर हो रहा है, देखिए the span B line is crossing the span A line। ये स्पैन ए लाइन है ग्रीन वाली ऊपर वाली, क्लियर? Okay. और ये स्पैन बी लाइन है, यस स्पैन बी लाइन है ये, एंड दिस इज द Yes, स्पैन ए yes. लाइन। तो स्पैन बी लाइन इज क्रॉसिंग द स्पैन ए लाइन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्पैन बी line is crossing span A line, the bearish trend is starting। see, then there's a bearish trend, this color represents the bearish trend, and when the span A line, see span A line has never, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, the span A line, green one, is crossing the red line, the span B line, तो उसके ऊपर ही चल रहा है। देखिए कितना बड़ा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चलते ही जा रहा है, क्लाउड के ऊपर है ना, प्राइसेस आर अबव द क्लाउड ऑलवेज। ये क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर प्राइसेस है, सो इट्स अ वेरी बुलिश ट्रेंड। जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड के बाद यू कैन सी दैट प्राइसेस अगेन ब्रोक। यहाँ पे स्पैन बी ने स्पैन ए को क्रॉस किया, देन देयर इज अ बेरिश ट्रेंड। So this will tell you the bearish trend. As long as this cloud is red, the bearish trend will continue. अब यहाँ पे क्रॉसओवर वापस से हो रहा है, देखिए यहाँ वापस से छोटे क्रॉस, छोटे क्रॉसओवर भी हो रहे हैं ना बीच में। यस यस,
ये भी देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, द स्पैन ए लाइन क्रॉस्ड ओवर द स्पैन बी लाइन, ये ग्रीन बना ना यहाँ पे, वो तो 17 मार्च माने फ्यूचर का डेट है वो पर। फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं, ये जो इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर है, तो ये पहले प्राइस एक्शन होगा और चार्ट बना दिया आगे का, ये आगे बुलिश सिग्नल, पर बहुत छोटा बुलिश सिग्नल नहीं है क्योंकि सर बाकी वेरी स्मॉल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल सिग्नल डेफिनेटली, उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इट इज एग्जैक्ट हो रहा है, ऊपर नीचे जा। बट बेसिक पॉइंट इज व्हेन द प्राइसेस आर अबव दिस क्लाउड देन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, व्हेन द प्राइसेस आर बिलो दिस क्लाउड द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। तो हमने क्या क्या देखा, हमने चीकू देखा, हमने किजुन देखा, हमने टेंकन देखा, हमने स्पैन ए देखा, स्पैन बी देखा, और हमने क्लाउड देखा। हाउ टू रीड एवरीबॉडी इज क्लियर। हम चीकू को नहीं लेंगे, चीकू इज ग्रीन लाइन। सर ये जो फ्यूचर का जो दिखा रहा है ये छोटा हाँ। सा इसने जो बनाया है, हाँ, सो इज इट गुड फॉर कॉल राइट, अगर कुछ कॉल राइट करना चाहे तो? yes, you can do call writing in this case. Because it's showing for April, March, right? पूरा हाँ मार्च Yes. तक है। yes, मार्च सीरीज दिखा रहा है मूवमेंट। बेसिकली आपको ये रीड करना सबको आ गया क्या? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। सर ये वाला अगर इसके बेसिस ये जो फुल इसका लीडिंग स्पैन ए बी एंड देन ये जो दिखा रहा है इसके बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है? यस, इट्स अ वेरी पावरफुल सिस्टम। अगर आप इचिमोको सीख जाएंगे, आपको कोई और इंडिकेटर नहीं चाहिए। So कुछ that लोग was my सिर्फ next इचिमोको फॉलो question. करते हैं, हाँ। बड़े बड़े एनालिस्ट हैं तो सिर्फ इचिमोको ट्रेडिंग सिस्टम ही फॉलो करते हैं। ये यूएस में सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग सिस्टम। So then what about the RSI, moving average, everything? नहीं, वो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो, आप इससे भी स्टडी कर सकते हो। ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें आपको कोई और So, इंडिकेटर but this is very good for these volatile stocks. यस It makes it simple. एग्जैक्टली। जितना वॉलेटिलिटी होगा उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। इचिमोको अपने आप में एक ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको कोई और सिस्टम की जरूरत नहीं है इसे मिलाने की। इसमें आपको फिबोनाची नहीं मिलाना है, इसमें आपको बॉलिंजर नहीं मिलाना है, ये कई ट्रेडिंग सिस्टम अलग मैंने सिखाया। सर इस स्टार्ट डेट से ऐसा लग रहा है कि कोई टाटा स्टील में कोई ट्रेड होना भी चाहिए था स्टिल, मैंने इन फ्यूचर मतलब अभी तक भी कुछ होना नहीं चाहिए था ट्रेड। अगर होना भी था तो सिर्फ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म 2-3 दिन का ही ट्रेड हो सकता था क्योंकि नहीं, ऑलवेज। हाँ अब यहाँ पे देखिए द नहीं उसके when the price is moving, हाँ मैं अक्टूबर के बाद का बात करो जब वो स्पैन बी जो ऊपर वाला क्लाउड है जब नीचे वाले क्लाउड को तोड़ ही दिया जिस दिन, हाँ उस समय उसके बाद तो कोई ट्रेड होना भी नहीं चाहिए था। हाँ, देखिए ना, उसके बाद साइडवेज चल रहा है ना, ये यहाँ क्लाउड के अंदर चल रहा है ना, क्लाउड के अंदर ही चल रहा है। देखिए ये अक्टूबर के बाद आप जो बोल रहे हो, क्लाउड के अंदर ही चल रहा है मार्केट, क्लाउड को तोड़ा नहीं है, मतलब अभी कंसोलिडेशन फेज में, तो कोई ट्रेड ले टाटा स्टील में बनेगा ही नहीं। अब जाके क्लाउड के ऊपर आया तब बना है ट्रेड। यहाँ पे क्लाउड को तोड़ा ना यहाँ पे, तो इस बात पे कैन हैव टेकन अ ट्रेड। बट वो क्लाउड को तोड़ा है सर, बट अभी भी वो जो नीचे वाला जो क्लाउड है वो सॉरी ऊपर वाला जो क्लाउड है वो अभी भी नीचे वाले क्लाउड के नीचे है। नो, दिस इज बेरिश, ये बेरिश है। हाँ बेरिश है, वही मैं बोल रहा हूँ अभी भी। लेकिन क्लाउड के ऊपर जाना मतलब बुलिश हो गया ना, यहाँ बुलिश दिखा ना फ्यूचर में। हाँ नहीं क्लाउड के ऊपर जाना बुलिश हो गया, बट क्लाउड का जो चार्ट है ऊपर वाला क्लाउड चार्ट है वो अभी भी नीचे है नीचे वाले क्लाउड के, तो भी कैसे हो सकता है वो मैं समझ रहा हूँ। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं किजुन के ऊपर है, टेंकन के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पे क्लाउड को ब्रेक कर रहा है। तो क्लाउड जो ब्रेक कर रहा है वो यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है कि जो सेनकू स्पैन ए लाइन है वो सेनकू स्पैन बी लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये 26 डेज बैकवर्ड का ट्रेंड लेता है, तो इसीलिए ये फॉरवर्ड में चल रहा है। ये ट्रेंड जो है, ये जो आप फ्यूचर का देख रहे हैं, ये अभी का ट्रेंड है 26 डेज बैकवर्ड।
exactly 26 days backward. Look at the price. Yeah. The price is below the cloud since 12th of November, right? Yes. And this is below the cloud till what? Till almost 13th of January. Till 13th of January, exactly. Right. Okay. Yeah. But you see 13 January से लेकर till around say 25th February, it is in the cloud. Mostly it is in the cloud only. Sideways movement. Sideways movement. So we didn't take a trade. But now convincingly it is green bar ये जो बना था, उसके बाद it is showing that it is breaking off the cloud, and then we can take a good trade. So logically, it should run the bull trade now. Yeah, it's a bull run continuing now. We can take a position. We could have taken position here on 2nd or 3rd March, and we could have continued the position. As long as this bars do not break this Tenkan Kijun and come in the cloud, fall black in the cloud, or go below the cloud, we will take a bullish position. जैसे यहाँ पे देखिए, ये cloud के ऊपर ही चल रहा है, Kijun के ऊपर है, Tenkan के ऊपर है, cloud के ऊपर चल रहा है. Such a big trend, Tata Steel, cloud के ऊपर ही चल रहा है. So as per this chart, till 8th of April, yeah, one can take the position, one can trade till 8th of April. Yes, exactly. सर मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों. जो अभी हम लोग बोल रहे थे 3rd मार्च को ट्रेड लेना है, एक्चुअली सेकेंड मैंने वो जो 28 फेब को वो ये किया, क्या नाम है, ब्रेक किया था ब्लू लाइन को, और 2nd मार्च को वो कंफर्म कर दिया कि वो ब्रेक हो गया है. अब जो मैं ट्रेड लूंगा 3rd मार्च को ट्रेड लूंगा, आज के दिन मेरा ट्रेड को ना प्रॉफिटेबल है ज्यादा ना वही है. मैं जिस प्राइस 3rd मार्च को लेंगे ना, 3rd मार्च को लेंगे ना. हाँ 3rd मार्च को देखिए 1305 का या 1 का कुछ प्राइस है, 1300 का एवरेज प्राइस है. और आज के दिन भी एवरेज प्राइस वही, और वो मेरे को 20 में 12 क्या प्राइस 1345 है ना, 1340 बंद हुआ है, 1320 पे बंद हुआ है ना. अब ट्रेंड तो अब बनेगा ना, अभी ट्रेंड का स्टार्ट है, ट्रेंड तो अब बनेगा. नहीं 1301 से बंद हुआ है ना सर. हाँ 1301 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आपने पोजीशन लिया. हाँ, और आज के दिन भी मैं वहीं खड़ा हूँ आफ्टर 4-5 डेज ऑल्सो. तो अभी ट्रेंड बनेगा, लेकिन क्लाउड के ऊपर है और किचन लाइन के ऊपर है. तो आप बाद में अब नेक्स्ट कल का परसों का लिखोगे, टिस्को विल बी इन द ग्रीन ओनली. ओके, अब ट्रेंड ही बनेगा इसमें. तो दो चीज सर, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं सपोज 3rd मार्च या 2nd मार्च 2-3 दिन मैंने ये मार्च से फॉलो कर रहा होता, तो मैं 3rd मार्च को 1301 पे ये ट्रेड करता, और मेरे को एक बार ये डाउन साइड में 1250 तक भी जाता, अराउंड 10 के. नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस मेरा ये है 1235. यस एग्जैक्टली, बस आपको ये ध्यान रखना. यस 1235 जून के ऊपर है, टेंकन के ऊपर है, तो मेरा वो स्टॉप लॉस है. जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप ट्रेंड में चलेगा. अब आप देखोगे मेटल्स में टिस्को भी आप ट्रेंड में चल रहा है. मैंने कल जिंदल स्टील पावर में ट्रेड दिया था, सीइंग द मूवमेंट ऑफ टिस्को ओनली. टिस्को 1260 था, तब मैंने देखा कि टिस्को इज ब्रेकिंग आउट, ऑल द अदर मेटल्स ब्रेक आउट. What is the most fastest way I can trade the metals is Jindal Steel Power, which is having a high beta. So मैंने Jindal Steel Power का trade दी. Instead of taking Tisco, I took Jindal Steel Power, which is faster than Tisco. नहीं आप जिंदल, जस्ट एक मिनट ना, मेरे और दो क्वेश्चन. व्हाई आप जिंदल स्टील आपने लिया टाटा स्टील की जगह, ये क्वेश्चन था सर. और दूसरा, अभी भी जो क्लाउड का जो ए पार्ट है वो नीचे है बी के, तो इज इट नॉट अ रिस्की थिंग? क्योंकि अभी तक आप देखोगे 14 मार्च या मतलब कल का दिन तक का 11 मार्च है ना, ट्रेड लेना बंद. यहाँ पे क्रॉसओवर कर रहा है ना, ये देखिए क्रॉसओवर कर रहा है ना क्लाउड ऊपर की तरफ. फ्यूचर में क्रॉसओवर करेगा ऐसा दिख रहा है. अगर वो फ्यूचर में करेगा, इसीलिए हम लोग पोजीशन ले रहे हैं. और क्लाउड के ऊपर ब्रेक कर रहा है. क्लाउड की मेन थिंग इज कि इट शुड ब्रेक अबव द क्लाउड. यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ. आपने वो अभी रेड है, यहाँ पे रेड है ना ये. हाँ हाँ, लेकिन क्राउड के ऊपर चल रहा है ना, ये अप ट्रेंड चल चालू है. ये चीज हो सकता है, लेकिन यू सी अगेन द कीजोन इज अबव द स्पैन ए लाइन इज अबव द स्पैन बी लाइन. ये जो होता है, ये जो क्लाउड बनता है ना, ये जो क्लाउड बनता है, ये ट्रेंड के बाद बन जाता है, बाद थोड़ा देर बाद बनता है. ट्रेंड स्टार्ट्स फर्स्ट. ट्रेंड विल स्टार्ट व्हेन द कीजोन और टेंकन के ऊपर प्राइस मूव कर गया. आपको वहां पोजीशन लेना है.
Cloud will indicate later. Cloud is a lagging indicator. Kijun and Tenkan is a leading indicator. तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस है, ये किजून के ऊपर कब गया था? ऑन 28 फरवरी। ठीक है। सो आपको कब लेना चाहिए था? 2 मार्च को पोजीशन। नहीं, 2 मार्च को तो सर मैं देखूंगा कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है कि नहीं है, कैंडल कैसा। नहीं, यहाँ पे ये अपने फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया, सेकंड बार बनी है, तो फिर आप यहाँ पोजीशन लेंगे। हाँ, 3rd मार्च पोजीशन लेंगे। अब ये टिस्को है ना, आपको जैसे वो जिंदल स्टील पावर का दिखा था, जो मैंने ट्रेड लिया था। सर एक चीज उसमें बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। हाँ, ये चार्ट का भी अपमूव हो गया है। सिंस ये आज के दिन और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट वो 3rd मार्च और ये एक ही प्राइस है, तो मैं अगर मंडे को भी फर्स्ट ले लूँ, बाय करता हूँ, yes. You can take on Monday also till the time it doesn't break 12:35, right? क्योंकि the price on 3rd March and 11th March closing is almost same. Almost same, yes. ठीक है। How did you arrive at the stop loss figure? Stop loss is this 12:35, this one, this blue line. How is it? What does it show? Yeah, This yeah. blue line is what? Yeah. This blue line is what? Blue line is that Tenkan Sen. Okay. 9 days, 9 day period का जो लेते हैं ना, conversion line. Okay. Red is the Kijun line. 26 days period. जो forecast क्या है, forecast तो very short period it is saying, right? Yes. आपको बेसिकली किजून और टेंकन को देखना है। किजून और टेंकन के ऊपर गया, आपको पोजीशन लेना है। क्लाउड इज एन इंडिकेटर कि आपको पोजीशन कब तक मेंटेन रखना है। क्लाउड विल नॉट टेल यू द ब्रेकआउट, द किजून एंड टेंकन लाइन विल टेल यू द ब्रेकआउट। क्लाउड विल जस्ट टेल यू कि कब तक क्लाउड के नीचे नहीं है, तब तक ये बुलिश जोन में रहेगा। क्लाउड के नीचे आ गया और स्पैन बी विल break the span A and the red cloud is formed, then that means the bearish signal will start. But वो late indicate करेगा, पहले टेंकन और किजून स्पैन से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपको टेंकन और किजून के क्रॉस करने के बाद पे आपको पोजीशन लेना है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। और अभी ना इसमें मैंने एक ये अपना एक्सटेंशन लाइन बनाया, और आपसे टारगेट दिख रहा है 1406 का। यस, लेट मी सी, आपने क्या बनाया देखते हैं। इसी में टाटा स्टील में एक्सटेंशन चार्ट बनाया, एक छोटा चैन का ही बनाया, जेन एन से लेके अभी तक का। Hmm, 1398 is a target. 1400 वाला जी। हाँ, exactly. 1400 भी मान सकते हैं। एंड मैंने वो भी बनाया इसमें सर, रिट्रेसमेंट भी सपोर्ट जानने के लिए। तो वो 25 का ही सपोर्ट आ रहा है, जो अभी अपना ये जो ब्लू लाइन बता रहा है ना। Yes, 1225 का आ रहा है। हाँ, 1235। हाँ, ओके। एंड व्हाई यू वर सेइंग सर कि ये जिंदल स्टील का चार्ट का ट्रेडिंग कर लेना चाहिए, टाटा स्टील देखते ही? टाटा स्टील इज स्लो ना, अब तो 2% टाटा स्टील बढ़ेगा, जिंदल स्टील पावर 6% बढ़ी है। ओके, बट अभी टाटा स्टील बहुत ज्यादा ओपन है ना, 1400 तक का टारगेट हो गया इसका भी। 100 रुपया का अप्रूव दे देगा अभी अचानक जल्दी। नहीं, रुपया में मत देखिए, आप परसेंटेज देखिए। जिंदल स्टील पावर में 4% मिल गया, टाटा स्टील में 2% मिलेगा, वो मैं I like the small and mid caps. I don't prefer large caps. Large caps is just to see the sectoral movements, कि क्या sector movement हो रहा है। People prefer large caps because it's more stable, less volatile, and it's more safer. They prefer that. You should trade large caps. But when you start learning technical analysis, then you will find more meat and more profits in the mid cap and small cap movements. वो वॉल्यूम वगैरह भी थोड़ा सा फैक्टर करता है ना, वॉल्यूम क्या है? Yes, breakout with volume होना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम देख लीजिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं। ये देखिए वॉल्यूम हाई है, ग्रीन बाइंग हो रहा है। हायर वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये वॉल्यूम का ग्राफ है ना,
दिस इज द वॉल्यूम ग्राफ। जब वॉल्यूम फॉल सर हो वो रहा अभी था प्रेजेंट डे में क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी वो एक बीच में अच्छा वॉल्यूम है मार्च में, हाँ 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 बट नाउ व्हाट इट इज इंडिकेटिंग? बीच में वॉल्यूम बहुत कम भी हो गया था। हाँ, वॉल्यूम कम है मतलब साइडवेज चल रहा है ना, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर अगर हायर इट वॉल्यूम इज से फिर शोइंग बढ़ेगा, साइडवेज है। हाँ हाँ, अगर हायर वॉल्यूम से फिर बढ़ेगा ये, as long as it is above a Tenkan-Sen line, then again it will be increasing. Volume is also important. हम लोग वो पढ़ेंगे, VWAP बोल के कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तब हम वॉल्यूम का कैसे यूज करना है इन ट्रेडिंग, यू विल अंडरस्टैंड दैट। उसको बोलते हैं VWAP. So we will also study VWAP in the later classes. और ऑल्सो इन वो जो कॉल पुट का वॉल्यूम रहता है, ओपन इंटरेस्ट है, वो भी करेंगे क्या? Yes, yes, we'll study that also. People have to study that because we have to understand कि technicals के साथ में volume is very important. So Correct, future yeah, options, yeah. जब future option करते हैं तो open interest देखना बहुत जरूरी है. So I will teach you the options chain also, how to study the options chain in NSE. How will to study options chain? You will find out what the direction is there और कौन सा strike price में कौन सा trade लेना चाहिए. That will also understand along with technical ओके study. सर, Yeah. ओके ओके। Anybody has any other questions? अच्छा, ITC में आपको देखना है? Okay, I'll show you in ITC. सर बस यस सर ITC में। ठीक है सर, मैंने इसमें चार्ट में कुछ नहीं था, वैसे ये बहुत डेंजरस नहीं है। 1300 में हम टारगेट ले रहे हैं, 1235 का स्टॉप लॉस यानी 65 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस और 100 रुपीज का अप मूव। मैंने रेंज में आपको बोल रहा था बस उसमें 65 रुपीज डाउन साइड नीचे में देखने के लिए, और ऊपर में भी 100 रुपीज का अप मूव है, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। जैसे स्टॉप लॉस जहाँ पे कम हो वहां पे ज्यादा मजा आता है ना, स्टॉप लॉस कम नहीं हो नहीं, 100 तो फर्स्ट टारगेट है ना, उसके बाद भी तो ऊपर जा सकते हैं ना सर। ओके। क्या पता आपको किसको 1560 1700 का नेक्स्ट टारगेट जो सेकंड फिबोनाची टारगेट है उससे पहुंच जाए। ओ वो You have taken a 1600 position, that doesn't mean कि वही टारगेट है, वो खाली एक इंडिकेटर है कि वहां पे अपने को क्या करना है। अगर उसको भी क्रॉस कर देगा तो वी विल कैरी आवर पोजीशंस। सम पीपल बुक आउट प्रॉफिट, बट यू हैव, देखिए क्या होता है ना, जो आपके विनिंग ट्रेड होते हैं उसमें आप जल्दी निकल जाते हैं और जो लूजिंग ट्रेड होते हैं उसको जल्दी ज्यादा पकड़ लेते हैं। तो उसका उल्टा करना चाहिए, जो विनिंग ट्रेड है उसको राइड करते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। टेक्निकल एनालिसिस से कोई ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको कब तक राइड करना है ना। विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर। यस, विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट ले लेते हैं और लॉस देख लेंगे बड़ा, जो लॉन्ग टर्म हो जाता है। वो अपने को नहीं करना है, अपने को स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट रहना है। अगर ट्रेड फेल हो गया, स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्ट रहना, उसको कैरी नहीं करना। इन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग का चीज अलग है, इन ट्रेडिंग